In the previous class, which I just had like 10 minutes ago, I taught the entire sampling. So anyone who missed that class, it's been recorded, and I'll share both these classes, today's classes recordings together. So कल हम लोगों ने स्क्रीनिंग सर्वेइंग सारा किया था, आज हमने सैम्पलिंग कर लिया और अभी मैं इंडेक्स और इंडिसेस पढ़ाऊंगी. And then I'll try to do biostatistics as well. Let's see how we do for time. So let me just start sharing my screen. Can you guys see the screen? Okay. All right. So, okay. So there, when we come to index and its properties, basically an index is a numerical scale with upper and lower limits, which tells us how a disease can basically be measured. Okay, so in simple words, it just tells you how a disease needs to be measured, if that disease is mild, if it's moderate, if it's severe, right? Or you could have ratings like 0, 1, 2, 3, which is a nominal way to rate it, right? Now, an index is basically the measurement of the prevalence of the disease and the incidence. Incidence is the new disease, prevalence is the currently standing disease, right? And it basically tells us which populations are at high risk, which populations are at low risk. And it also helps us understand the specific problems under the study, right? So that's why we obviously have index. That is what an index is. It's a numerical scale, basically, जिससे हमें पता चलता है, right? जैसे कि कोई कहता है स्टेज 1 कैंसर है, स्टेज 4 कैंसर है, राइट? सो हमें कैसे पता कि स्टेज 4 और क्या है, स्टेज 1 क्या है? इट्स डिफरेंट वेज दैट यू बेसिकली डिवाइड द इंटेंसिटी ऑफ द कैंसर, राइट? सो इसी तरीके से हमारी ऑलमोस्ट डेंटल डिजीजेस में भी हमारे पास इंडेक्स होता है. केरीज के लिए भी इंडेक्स होता है हमारे पास, फ्लोरोसिस के लिए भी होता है, पेरियोडोंटल डिजीजेस के लिए भी होता है, ठीक है? अच्छा. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिसेस ये है कि इंडिसेस स्टैंडर्डाइजेशन करा देती है हमारे लिए, ठीक है? कंपैरिजन में आसानी कर देती है, ठीक है, हमारे लिए. तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंस है इंडिसेस की, जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा. अब टर्म्स टू डिस्क्राइब एन इंडेक्स, हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इंडेक्सेस होती है, राइट? अच्छा देखो, इसमें लर्निंग का इतना कुछ है नहीं, इसमें बस अंडरस्टैंडिंग का है. तो मैं नोट्स शेयर कर दूंगी एंड एक दो वीडियो लिंक्स भी भेज दूंगी, तो वो देख के आप लोगों को काफी क्लियर हो जाएगा. बट essentially she's not gonna make questions like, oh, what is the importance of indices, right? She's not going to ask you that kind of question. She's going to ask you questions regarding the scales. So I'm going to try and put more of my time and energy towards the scales, essentially, right? So I'm just superficially going through this stuff. Now, the terms to describe an index, you have reversible index and irreversible index. Reversible index measures condition which is reversible, okay? For example, gingivitis. Gingivitis kya hai? Anything which has the word itis means inflammation. Gingiv means the gums. तो गम्स की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको जिंजिवाइटिस कहते हैं, और ये एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है. तो इसकी इंडेक्स रिवर्सिबल इंडेक्स होती है, क्योंकि इवन इफ इट्स ऑन द स्केल 2, इट कैन कम डाउन टू 1 इफ यू कंट्रोल इट, इफ यू चेंज योर लाइफस्टाइल, इफ यू हैव बेटर हैबिट्स, ऑल ऑफ दैट गुड स्टफ, ठीक है? बट एन irreversible index is for those diseases which cannot be reversed, such as dental caries. ठीक है? This is as simple as saying asthma and COPD. Asthma is a reversible disorder. COPD is an irreversible disorder. So if anyone has asthma, they can actually live a normal life and they can actually control it, and they can, change certain lifestyles, avoid the triggers जिनसे asthma उनका aggravate होता है, and they can be completely okay. But COPD is chronic obstructive cough. अब वो आपकी airway ऑब्स्ट्रक्शन इतनी हो गई है कि आपको कॉफ लाइफ लॉन्ग रहेगी, राइट? सो सिमिलरली डेंटल डिजीजेस में भी कुछ रिवर्सिबल होती है, सच एज जिंजिवाइटिस. इट इज अ रिवर्सिबल डिजीज, तो इसकी इंडेक्स भी रिवर्सिबल होगी. एंड केरीज इज द काइंड ऑफ डिजीज विच इज इरिवर्सिबल. एक दफा कीड़ा लग गया दांत में तो कीड़ा लग गया. इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते. आप फिलिंग कर सकते हो, बट दैट्स अ रिस्टोरेशन. आप वापस से कीड़े को खत्म खुद ब खुद नहीं कर सकते कि ओ अब मैं हेल्दी फूड्स खाऊंगा और मैं दांत ब्रश करूंगा तो मेरी कीड़ा चला जाएगा दांत का. नहीं, लग गया तो लग गया. इट्स इरिवर्सिबल नाउ, ठीक है? Okay, so acha, properties of index. Index should be simple, important, clear and valid, reliable, reproducible, sensitive, and it should be accepted. ठीक है? तो ये आप लोग प्लीज खुद ही से सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा. Very important though, don't ignore it. It's important for the viva. ठीक है? Commonly used indices. Now we have DMFT, which is used for the dental caries. CPITN, which is used for periodontal treatment, for plaque measurement for gingivitis. Then we have DDE, which is for enamel. Dean's fluorosis index for fluorosis, erosion index for erosion, and then a bunch of others. But these ones that I've highlighted are definitely the most important ones. So you should, like, in a spur of a second, know if it's saying DMFT, it is caries. If it's saying CPI10, it is periodontal. If it's saying Dean's, it is fluorosis. This is very, very important to know. ठीक है? अच्छा. Now,
Let's start with the indices for fluorosis. Now, fluorosis is a disease caused by deposition of fluorides, right? Clinically जो होती है इसमें opaque white patches आ जाते हैं in the enamel, which may be mottled, stained or pitted. Normal fluorosis फ्लोराइड की रेंज ये होती है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए. आप में से जिसने मेरे साथ सीडी का मॉड्यूल 2 किया हुआ है, आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में फ्लोरोसिस कराया हुआ है एंड आप लोगों के पास नोट्स भी हैं, तो आई थिंक आप लोगों के लिए मुझे आई डोंट नीड टू रिपीट दिस, ठीक है. नाउ व्हाट आर द स्टेजेस टू इनटेक द फ्लोराइड? यू शुड नो दिस दैट प्रेगनेंसी में जो है वो फ्लोरोसिस, देखो व्हाट स्टेजेस में आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए लाइफ में, ये पता होना चाहिए. देखो, कहने का मकसद ये कि जिंदगी में कौन सी फेजेस में आपको केयरफुल होना चाहिए जिसकी वजह से खुदा न खास्ता किसी को फ्लोरोसिस हो सकता है. तो दो स्टेजेस है. एक तो व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, व्हेन अ मदर इज प्रेग्नेंट, ठीक है, शी नीड्स टू मेक श्योर कि बहुत ज्यादा उसका फ्लोराइड इनटेक नहीं हो, क्योंकि बेबी में फिर खुदा ना खास्ता जो उसकी प्राइमरी डेंटिशन होगी उसमें फ्लोरोसिस हो सकता है. नंबर वन. नंबर टू, एज 1 से लेकर 6 तक के बच्चों को बहुत केयरफुली टूथपेस्ट देना चाहिए. या तो आप उनके लिए खुद से टूथपेस्ट निकालो उनके लिए, या आप बहुत केयरफुली उनको ब्रश खुद से करके दो, क्योंकि 1 to 6 ईयर्स की एज में बच्चों को नॉलेज नहीं होती कि वो कितना टूथपेस्ट निकाल रहे हैं. एंड अगर वो बहुत ज्यादा टूथपेस्ट निकाल लें, उनके तो बिल्कुल छोटे छोटे से दांत होते हैं, तो वो ज्यादा अगर टूथपेस्ट लगा रहे हैं तो वो फ्लोराइड उनके गले में जा रहे हैं, उसकी वजह से उनको फ्लोरोसिस हो सकता है. सो दीज आर द टू स्टेजेस जिसमें सबसे ज्यादा फ्लोराइड इनटेक को केयरफुली देखना, मॉनिटर करना चाहिए, एक प्रेग्नेंट वुमन एंड एक एज 1 to 6 में, ठीक है. अच्छा, अब हिस्ट्री ऑफ फ्लोरोसिस क्या है? आई एम नॉट गोइंग थ्रू दिस, बट ये आप लोगों की हियरमत में भी है तो इसको रीड कर लेना. कि कोलोराडो में सबसे पहले देखा गया था. मिक्के एक डेंटिस्ट था, उसने नोटिस किया था फ्लोरोसिस को. फिर वक्त के साथ साथ एक क्लासिफिकेशन हुई थी. 1942 में जो है वो जाके हमारी प्रॉपर फ्लोरोसिस की जो है वो हमने व्हाट्स इट कॉल्ड इंडेक्स बनाई थी, which is the Dean's fluorosis index. Now, Dean's fluorosis index assesses the prevalence of dental fluorosis. What do I mean by the word prevalence? Prevalence means the disease की existence, right? एंड इसके जो अंदर ऑर्डिनल स्केल एक था जिसमें लिखा हुआ था नॉर्मल, क्वेश्चनेबल, वेरी माइल्ड, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सिवियर एंड सिवियर, ठीक है. तो ये स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है, मैं अभी स्लाइड्स भी दिखा दूंगी. तो दिस इज हाउ डीन्स फ्लोरोसिस इंडेक्स वाज. बट देन वक्त के साथ साथ लोगों ने ये रियलाइज किया कि ये तो बहुत लंबी है, तो इसमें से कुछ चीजों को निकाल दो. तो फिर रेंज उन्होंने छोटी कर दी एंड द रेंज वाज देन 1, 0 being normal, ठीक है, 1 being mild, 2 being moderate, 3 being severe, moderately severe, and then 4 being severe, something like that. I'll just show it to you guys from the slides so that I'm not messing up. In fact, I have it right here. Let me just go through it. Okay. Sorry, guys, just a second. These are the caries ones. I'm looking for the fluorosis ones. आई डोंट नो, मुझे अभी नहीं मिल रहा, बट मैं अभी 2 सेकंड में तुम लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है. बट दिस इज व्हाट इट वाज. अच्छा, फिर एक और भी फ्लोरोसिस की इंडेक्स है विच इज कॉल्ड द थाइलस्ट्रॉप फेजरस्कॉप इंडेक्स. जस्ट नो द नेम, दिस इज जस्ट अनदर इंडेक्स, इट्स नेवर यूज्ड, जस्ट नो द नेम. डीन्स फ्लोरोसिस इंडेक्स आप लोगों को पूरी आनी चाहिए और उसका पूरा स्केल आना चाहिए, कि अगर आपके सामने 4 दांतों की तस्वीर हो तो आप बता सको कि सिवियर कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है, माइल्ड कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है. इसका सिर्फ और सिर्फ नाम पता होना चाहिए, ठीक है. एंड देन देर इज ऑल्सो द फ्लोरोसिस रिस्क इंडेक्स. इसका भी अगेन सिर्फ और सिर्फ नाम पता होना चाहिए. Colorado white spot is another name for fluorosis because the first case of fluorosis was seen in Colorado. This is a BCQ, तो ये याद कर लेना, ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास डेंटल केरीज की इंडेक्स आ जाती है, ठीक है, जिसमें से हमारे पास डी का मतलब होता है डिकेड, एम का मतलब होता है मिसिंग, एफ का मतलब होता है फिलिंग. अच्छा, इस केरीज के इंडेक्स के अंदर हम अपने अनइरप्टेड टीथ को, कंजेनिटली मिसिंग टीथ को एंड थर्ड मोलर्स को काउंट नहीं करते, तो हम सिर्फ और सिर्फ 28 दांतों को डील करते हैं, ठीक है. अच्छा, इसमें जो है वो अगेन अगर कोई दांत की फिलिंग हुई हुई है विद रिकरेंट केरीज, उसको फिर हम डी ही बोलते हैं, ठीक है. अगर बहुत सारे दांतों की बहुत दफा फिलिंग हुई है तो उसको आज 1 टूथ काउंट करते हैं. अगर कोई टूथ मिसिंग है तो उसको लॉस्ट ड्यू टू केरीज है तो उसको आप मिसिंग कहते हो, या एक्सट्रैक्टेड है तो भी मिसिंग कहते हो. दीज आर जस्ट सम प्रिंसिपल्स फॉर वाइवा यू शुड नो. वैसे ये बीसीक्यू में नहीं आता. बीसीक्यू में अगेन वो इंडेक्स का स्केल आता है, ठीक है. लिमिटेशन, इट इज एन इरिवर्सिबल चीज, तो ये ऑब्वियसली इसकी लिमिटेशन है कि केरीज इज इरिवर्सिबल, ठीक है. ये देखो, अब डीएमएफटीएस कैलकुलेट कैसे होता है. ये एक बेसिक कैलकुलेशन है. 20 जो है वो दांत है और उसकी सर्फेसेस से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 148 स्कोर निकलता है. ये मैं तुम लोगों को स्लाइड से भी दिखा देती हूँ, तो ये अभी तुम लोग देख लेना मेरे साथ स्लाइड्स में, ठीक है. ये तुम लोग देख लो. एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ जो तुम लोगों के ऑस्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है, वो ये है द अदर टाइप्स ऑफ डेंटल केरीज.
What are the other types of dental caries? The other types of dental caries are the PUFA, ठीक है, there is the specific caries, there is ICDAS, there are all of these other types of dental caries. तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए because this she often, guys जिसका भी माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है। अच्छा, दिस शी ऑलवेज आस्क्स यू व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ केरीज के इंडेक्सेस, ये उसमें बीसीक्यू में भी आया हुआ था तो इसलिए मैंने कहा कि तुम लोग को ये दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम स्लाइड्स में से देख लेते हैं अपने केरीज को। ये देखो, अच्छा दीज आर अगेन, ये स्लाइड्स मैंने आप लोगों को भेजी है, आई एम श्योर आप लोगों के पास होंगी भी, तो आप देख लेना। 5 सरफेस होती है पोस्टीरियर की एंड 4 सरफेसेस होती है एंटीरियर की, ठीक है। तो इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं। ये इसकी कैलकुलेशन है, इसको बस रट लेना। ऑनेस्टली मुझे भी इतनी कोई याद नहीं है बिकॉज मैंने भी रटी थी, तो बस इसको देख लेना। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्की है, ये पूरा का पूरा एक ऑस्की का स्पॉट था वेयर लिटरली द ओनली क्वेश्चन वाज टेल एनी अदर केरीज का इंडेक्स बिसाइड्स डीएमएफटीएस। तो सिग्निफिकेंट केरीज हो गया, इकडाज हो गया, स्पेसिफिक हो गया, पफा हो गया, ये सारे के सारे नाम आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट 3 तो याद कर लेना, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आया तो ऑस्पी में, मैंने दूसरी दफा रिपीट किया है, ठीक है। अच्छा जी, फिर रूट केरीज का पता होना चाहिए कि 1980 में रूट केरीज को भी हमने काउंट करना शुरू किया था। देखो अगर इस तरीके से कोई पिक्चर आती है ऑस्की में, तो यू गाइस शुड बी एबल टू टेल, शिट आई वाज नॉट रिकॉर्डिंग द क्लास राइट, शिट, no, I am recording the class. Oh, perfect. So you guys should be able to tell that this is root caries. ठीक है? Some picture like this shows up. You should know that this is root caries. ठीक है? Then baby bottle caries हो जाती. This is childhood caries. This she can ask. Again, I don't think she's gonna print out pictures for Viva, but in OSCE she can ask. You can tell this is a baby's tooth because it's a primary dentition. So this is nursing caries. ठीक है? Let me see any other scale की pictures if there are, so that I show them to you guys. No, I think that's about it. ओके, हाँ ये जैसे तुम लोग देख सकते हो इस तरीके से तुम लोग के पास क्लिनिकल पिक्चर्स आ सकती हैं एंड यू वुड हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये पिक्चर है, अगर वो तुमसे पूछते हैं गाइस इस पिक्चर को एक्सप्लेन करो वाइवा में, द फर्स्ट वर्ड यू हैव टू से इज दिस इज अ क्लिनिकल पिक्चर of the oral cavity. We can see the premolar and the two molars here. These are the lower क्या कहते हैं मोलर्स, ठीक है। लोअर इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली आउटलाइन से पता चल रहा है कि ये ऑक्लूजल एस्पेक्ट है, लोअर मोलर्स का ऑक्लूजल एस्पेक्ट है। And what we can see is that before there was an amalgam restoration done and later there was a composite restoration that has been done. तो ये बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर एक्सप्लेन करने के लिए, ये अगर ये वाली पिक्चर पूछती है तो आप इसमें देख सकते हो कि ये रूट केरीज है बिकॉज यू कैन सी कि रूट की तरफ केरीज जा रही है। सो यू वुड से दिस इज द क्लिनिकल पिक्चर showing the primary dentition and we can see that there is root caries evident on the posterior teeth and in the front anteriors of the क्या कहते हैं maxilla। इस तरीके से आपको पिक्चर एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, ठीक है ना, समझ आ रही है। तो इस तरीके से वो अक्सर क्लिनिकल सिनेरियोज दे देती है, ठीक है। तो यू शुड बी एबल टू टेल एंड देन इन अकॉर्डिंग टू दैट यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट द डीएमएफटीएस स्कोर व्हिच अगेन आई थिंक इज बीइंग टॉट टू यू गाइस इन योर लैब्स, सो होपफुली यू हैव डन दैट देयर बिकॉज़ ऑब्वियसली अब मुझे लैब की एक एक चीज तो नहीं याद, मैं तो आप लोगों को थियरी पढ़ा रही हूँ, बट ये है कि दिस इज एसेंशियली हाउ इट्स डन, ठीक है। ओके, देन फाइनली वी हैव द पेरियोडोंटल इंडेक्स, ठीक है। नाउ पेरियोडोंटल डिजीजेस में सबसे पहले पेरियोडोंटल डिजीज आ जाती है जिंजिवाइटिस। Gingivitis, like I explained, is the inflammation of the gum where the plaque and the byproducts irritate the gum, make it tender, but this is a reversible condition. जिंजिवाइटिस में देखो रेडनेस ऑफ गम दिखती है, क्या होता है गम्स में थोड़ी थोड़ी रेडनेस दिखती है। पेरियोडोंटाइटिस में गाइस क्या होता है कि गम में रेडनेस होती है बट ज्यादा ज्यादा दांत दिखने लग जाते हैं। मतलब देखो यहाँ पे कितना थोड़ा सा दांत दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो कितना ज्यादा दांत दिखने लग गया है, मतलब रिसेशन हो रही है। तो रिसेशन एंड पॉकेट्स दिखने लग जाती है एंड देन एडवांस्ड पेरियोडोंटाइटिस होता है, तो देखो पूरी की पूरी पॉकेट ऑफ दांत दिख रहा है, देखो कितना सारा दांत दिख रहा है, गम्स कितने रिसीड हो गए, रिसेशन हो रही है। देखो गाइस इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए है तुम लोगों के लिए क्योंकि अगर ऑस्की में आएगा तो यू शुड बी एबल टू टेल विच इज व्हाट। तो दिस इज द नॉर्मल gingiva, दिस इज gingivitis, it's just redness essentially, ठीक है, which means plaque is accumulating and there's irritants and your teeth are likely to bleed more because they are very red. Here it's periodontitis, the plaque hardens, there's calculus, and you can see that the recession has begun. And this is advanced periodontitis where a lot of recession has begun. And when there is advanced periodontitis, there is bone loss eventually.
देखो ये देखो, this is gum recession. She can ask you to explain this clinical picture in the viva. So you would say, this is a clinical picture showing us the entire oral cavity. We can see the maxilla and the mandible. It is greatly evident, especially at the mandibular region of the anteriors, that recession is taking place, which indicates advanced periodontitis. This is how you're supposed to speak. ठीक है? This is how you're supposed to see. Now, this is a CPITN probe. इसके थ्रू हमें जो है वो वैल्यूज पता चलती है फॉर आवर इंडिसेस. ठीक है? सो डेंटल प्लाक, ओरल हाइजीन की, जिंजिवल इन्फ्लेमेशन की, पेरिडोंटल डिजीज की 3 किस्म की इंडिसेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब लोअर सिलस प्लाक इंडेक्स एक हमारे पास होती है. ठीक है, जिससे हम जिंजिवल इन्फ्लेमेशन को देख सकते हैं. तो जिंजिवल इन्फ्लेमेशन को हम किससे देख सकते हैं? लो एंड सिलनेस से. तो ये आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना कि इससे हम जिंजिवल को देख सकते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट द डेंटल प्लाक लुक्स लाइक. ठीक है, देखो इधर पेरिडोंटाइटिस नहीं है, बट दिस इज जस्ट द प्लाक. तो इसको प्लाक को हम लो एंड सिलनेस इंडेक्स से देख लेते हैं. अगर 0 होगा स्कोर तो देयर इज नो प्लाक, 1 है तो थोड़ा बहुत प्लाक है, 2 है तो मॉडरेट है, एंड 3 है तो अबंडेंस में प्लाक है. प्लाक इज जस्ट द शाइनी बैक्टीरिया अक्यूमुलेशन. ठीक है, फिर हमारे पास ओरल हाइजीन सिंप्लीफाइड वाला आ जाता है. ठीक है, जिससे अगेन हम ओरल हाइजीन को एंड कैलकुलस की कैलकुलेशन को देख सकते हैं. ये कभी भी ऑनेस्टली स्पीकिंग पेपर में आता नहीं है, बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि इससे डब्ल्यू के बारे में पता चल रहा है. अगेन 0 मीनिंग नथिंग, 3 मीनिंग द मोस्ट. ठीक है, अगेन दिस रियली डजंट कम इन द पेपर, यू शुड जस्ट नो द डिफरेंट नेम्स. देखो ये देखो सारा कैलकुलस है, तो कैलकुलस के लिए आप कौन सा यूज करोगे? ओरल हाइजीन वाला. सही है, सो कैलकुलस के लिए कौन सा यूज करोगे? ओरल हाइजीन, ओरल डेब्री वाला. ठीक है, एंड प्लाक के लिए कौन सा यूज करोगे? लो एंड सिलनेस. ठीक है, सो जस्ट कीप मेकिंग अ नोट ऑफ दिस. ठीक है, ये इसके कैलकुलस के स्कोर्स हैं. अगेन 0 बीइंग द लीस्ट एंड देन 3 बीइंग द मोस्ट. अब जिंजिवल इन्फ्लेमेशन के लिए आप वापस से लो एंड सिलनेस यूज कर सकते हो. ठीक है, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि लो एंड सिलनेस जब आप यूज करते हो, हाँ मैं मुजामिल ही भेज दूंगी, कोई मसला नहीं है. लू एंड सिलनेस जब आप कैलकुलेट करते हो तो इसमें इंडेक्स के में जो सर्टन टीथ होते हैं ना, उसमें आप प्रोबिंग करते हो. तो ये एक अजीब सा पता नहीं डायग्राम था जो उन्होंने एक दफा ऑस्की में डाल दिया था, इट वाज रियली कंफ्यूजिंग. तो ये 16, 12, 24, 44, 32, ये जो है ना गाइस, ये आप लोग याद कर लो फॉर द सेक ऑफ योर जिंजिवाइटिस. ठीक है, तो ये याद कर लेना लू एंड सिलनेस का. ठीक है, एंड लू एंड सिलनेस वाज द ओल्डेस्ट इंडेक्स. देखो ये जिंजिवाइटिस है, रेडनेस हो रही है सिर्फ और सिर्फ. सिर्फ बीसीक्यू ये आएगा कि जिंजिवाइटिस में कौन सी इंडेक्स का स्केल यूज होता है, तो यू विल से लू एंड सिलनेस. ठीक है, माइल्ड इन्फ्लेमेशन, मॉडरेट इन्फ्लेमेशन, सीवियर इन्फ्लेमेशन, दिस शुड बी मेमोराइज्ड. अभी तक मैंने जितनी चीजें कराई मैंने बहुत सुपरफिशियली कराई. ठीक है, बिकॉज वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी. This you cannot mess up. This needs to be memorized. Very important for gingivitis, loo and silness. लू एंड सिलनेस आपका पहले भी आया था. ठीक है, लेकिन एक सेकंड वेट करो, लेकिन वापस से मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है. एक सेकंड. हाँ, वापस से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअली आप लोग के ऑस की वाइवा हर चीज में आ सकता है. तो ये आप लोग को पता होना चाहिए. आप लोगों के जिंजिवाइटिस के लिए होता है रेडनेस, एडीमा, ग्लेजिंग. मॉडरेट में, सिवियर में जो है वो टेंडेंसी टू स्पॉन्टेनियसली ब्लीड होता है. माइल्ड इन्फ्लेमेशन 1 में होता है, 0 में नॉर्मल होता है. दिस इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट. प्लीज प्लीज डू दिस अच्छे से. लाइक when you'll get into the perio rotation, because I've already done perio, तो अब मैं ये पढ़ा रही हूँ तो मुझे इतना रिलेट हो रहा है कि मेरे पास इतने पेशेंट ऐसे आते थे कि मैं प्रोब जो ही दांत के गम की पॉकेट में लिटरली डालती थी तो खून बहने लग जाता था. तो वो सिवियर इन्फ्लेमेशन वाले थे. और कुछ में रेडनेस होती थी, थोड़ी सी ब्लीडिंग और प्रोबिंग होती थी, वो मॉडरेट होते थे. तो मेरे पास भी लॉग बुक में इसी तरीके का स्केल है. तो यही स्केल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई. ठीक है, कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे, बस तुम लोग को ये आना चाहिए. ये एक जेनेरिक आउटलाइन है कि 0 से 0.1 है तो नो है, 2.1 से 3 है तो सिवियर है. तो इसको अगेन देख लेना तुम लोग अपनी नॉलेज के लिए, जिंजिवाइटिस के लिए. ठीक है, इसके अलावा जिंजिवल डिजीजेस के लिए ये सारे के सारे क्या कहते हैं इंडिसीज होते हैं. बट तुम लोगों को जो मैंने बताया तुम लोगों ने वो अच्छे से करना है. इनके तुम लोग अगेन सिर्फ और सिर्फ नाम पढ़ लेना. ठीक है, नाउ पेरियोडोंटल डिजीज के लिए हमारे पास सीपीआईटीएन होता है. सीपीआईटीएन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सीपीआईटीएन इज रिवर्सिबल. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि सीपीआईटीएन हम रिवर्सिबली यूज करते हैं. ये बीसीक्यू में वो अक्सर बच्चों को घुमा देते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पेरियोडोंटाइटिस इटसेल्फ इज अ इरिवर्सिबल डिजीज, बट द इंडेक्स दैट वी आर यूजिंग इज रिवर्सिबल. ठीक है, सीपीआईटीएन इज रिवर्सिबल. सीपीआईटीएन प्रोब जो है उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों को पता होना चाहिए. अगेन आप लोगों को लैब में आई एम श्योर टीचर ने कराया हुआ होगा, तो यू विल नो इट. एंड यू जस्ट वॉक अराउंड योर प्रोब इन ईच सेक्शन. मतलब हर 3 दांतों के इर्द गिर्द आप गम्स में उसको वॉक अराउंड करते हो. ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए. यूजेस उसकी पता होनी चाहिए और उसकी लिमिटेशन पता होनी चाहिए.
इरिवर्सिबल चेंजेस सीपीआईटीएन से नहीं रिकॉर्ड होता, दैट इज व्हाई इट इज अ रिवर्सिबल इंडेक्स। इरिवर्सिबल चेंजेस नहीं रिकॉर्ड होते सच एज रिसेशन, टूथ मोबिलिटी एंड लॉस ऑफ पेरिडोंटल अटैचमेंट। तो कहने का मकसद ये है, मैं बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, कि अगर ये दांत हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और ये गम्स हैं, ठीक है, तो जब मैंने प्रोब अंदर डाला, अपना ग्रीन कलर का प्रोब है, ठीक है, जब मैंने अपना ये प्रोब अंदर की तरफ को डाला, तो आई डोंट आइडेंटिफाई कि दांत हिल रहा है कि नहीं बाय प्लेसिंग माय प्रोब। आई कैन रिकॉग्नाइज ब्लीडिंग, यस, बट ब्लीडिंग तो जिंजिवाइटिस में भी होती है, और जिंजिवाइटिस तो रिवर्सिबल है, राइट? I cannot tell if there is tooth mobility. I cannot tell if there is loss of periodontal attachment, meaning bone हिल चुकी है. Those things I cannot tell. Those irreversible changes I cannot tell, which is why CPITN is reversible. क्योंकि वो bleeding और probing दिखा रहा है, लेकिन bleeding और probing तो gingivitis में भी होता है। मैंने क्लास के शुरू में ही कहा था कि gingivitis is what? Reversible. So TPITN as an index is also reversible because it cannot record these irreversible changes. Now, this index teeth values you need to learn for your SP. It came in my SP. So just write these down and learn both of these. Specified index teeth and Ramford index teeth. I don't even know why these came because we literally went over them in the class once, but this came. So please learn this. Again, I will share the slides. These are the codes for CPIT, and again, something you need to know really well. It can come in your OSPI, ठीक है? So that you need to know. Advantages of CPIT क्या है? Uniformity होती है और अच्छे से recording हो जाती है. अच्छा. अब reversible and irreversible changes के लिए we actually have the Russell's periodontal index. This is a mouth mirror and a periodontal probe. This is the one that is usually used. Russell's वाला, ठीक है? This is reversible and irreversible. This comes as a BCQ. तो CPITN क्या है? Reversible. Russell's क्या है? Reversible and irreversible. This often comes as a BCQ, so you should know this is what it looks like. These are its criteria. Again, this criteria you need to know. 2 तक reversible है, 4 becomes irreversible. This you need to know for the BCQ. It's really important, this distinction right here. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रसल्स दोनों को आइडेंटिफाई कर सकता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल को। अब ये इसके यूजेस है जो है वो डिस्टिंग्विशिंग में ही यूज होता है। एडवांटेजेस ये है, इजी है, क्लियर है, क्राइटेरिया इसका बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है, दोनों रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस को यूज कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली डेंटिस्ट प्रेफर्स टू यूज दिस। लिमिटेशन ये है कि इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, इसको ऑफ्टन कैरी करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, एंड स्कोर्स एकदम से 2 से 4 पे जंप हो जाते हैं, तो दैट गेट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है। तो दोस वर ऑल ऑफ योर पेरियोडोंटल क्या कहते हैं इंडिसेस, ठीक है। नाउ आई थिंक एवरीवन इज अ लिटिल बिट टायर्ड, ठीक है, एट दिस पॉइंट। आई थिंक बायोस्टैटिस्टिक्स हम नेक्स्ट क्लास के लिए रख लेते हैं, ऑल्दो आई वांटेड टू फिनिश एवरीथिंग टुडे, मैं खुद थक गई हूँ। आई जस्ट वांट टू आस्क, डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस regarding the different types of indices? Just know that index जो है वो एक स्कोरिंग का तरीकेकार होता है, ठीक है। डेंटल केस में डीएमएफटी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। डीएमएफटी के अलावा पुफा, सिग्निफिकेंट केस इंडेक्स, ये सारे के सारे होते हैं जो ऑस्पी में पूछ सकते हैं, ठीक है। इकदास हो गया। पेरियोडोंटल के लिए हमारे पास प्लाक एंड ओरल हाइजीन के लिए जो है वो ये बेसिक वाले होते हैं, ओरल हाइजीन सिंप्लीफाइड या डेब्री वाला होता है, ठीक है। हमारे पास जिंजिवाइटिस के लिए लू एंड सिलनेस होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इन 1963, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लू एंड सिलनेस इज फॉर जिंजिवाइटिस, जिंजिवाइटिस इज अ रिवर्सिबल कंडीशन, और उसका पूरा का पूरा क्राइटेरिया आपको रटा हुआ होना चाहिए, मैं फिर बता रही हूँ। एंड देन पेरियोडोंटल के लिए हमारे पास सीपीआईटीएन एंड रसल्स होते हैं। रसल्स इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, सीपीआईटीएन इज ओनली रिवर्सिबल, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू स्पेसिफाइड इंडेक्स, रैमफोर्ड इंडेक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये आप मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों के ऑस्की में आ सकता है, और ऑस्की में ऐसे आएगा कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं होगा, आप लोगों के सामने बस स्पॉट होगा, ठीक है, और आप लोगों को उस हिसाब से बताना होगा कि ये माइल्ड है या ये मॉडरेट है। तो अगर आप लोग ये पॉइंटर्स अच्छे से पढ़ के जाओगे और अपनी लॉगबुक की जो स्टडी लॉगबुक में जो पिक्चर्स है वो अच्छे से करोगे, तो ऑनेस्टली बहुत आसान है इसकी ऑस्की, ठीक है। तो ये आप लोग को पता ना चाहिए। एंड देन फ्लोरोसिस में ऑब्वियसली वो डीन्स फ्लोरोसिस इंडेक्स ही आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये इसका क्राइटेरिया है। नॉर्मल, क्वेश्चनेबल, वेरी माइल्ड, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर था। फिर इसको फर्दर समराइज करके और छोटा कर दिया था, जिसमें सिर्फ नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर रह गया था, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो वो अगेन आप लोगों की लॉग बुक्स में लिखा हुआ है, बना हुआ है सारा, तो वो आप लोग देख, ठीक है। इज दिस क्लियर?
So far, everything is good. It is a little bit complicated, I know. This is probably the hardest part of the CD syllabus. Um, but if you understand it once कि कौन सा index किसके लिए, index की purpose क्या है, you know, you will be able to do it. ठीक है, और अगर आप बार बार उन स्कोर्स को पढ़ लोगे तो आपके सामने जब क्लिनिकल पिक्चर आएगी तो आप खुद ही पता लगा सकोगे कि अच्छा यार ये माइल्ड है या ये मॉडरेट है या ये सिवियर है, खुद ही से समझ आ जाता है क्योंकि काफी डिस्टिंग्विश्ड होता है, काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, किसी को कोई सवाल? अंशरा, लाइबा, माहीन, संजना, मुजम्मिल, मरियम, एवरीवनस क्लियर? सही है गाइस, कुछ रिपीट करना है तो बता दो। ठीक है। I'm gonna stop this class and then share both the recordings of both the classes and we'll do biostatistics tomorrow. I wanted to finish it today, but I think biostatistics will not take more than 20 minutes to be very honest, and I think we should do it with a fresh mind. So let's stop here. I want you guys to please go over this indices wali class again so that you guys can solidify everything. और ये जो combined slides की PDF है ये मैं अभी भेजी हूँ जिसमें सारी की सारी इंडेक्स की इंडिसेस की स्लाइड्स है, तो वो तुम लोग प्लीज देख लेना। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज।